Good morning, students. Today we are going to start first chapter of Hornbill, the portrait of a lady, written by Kushwant Singh. As the name clears that in the chapter, the writer draws a lifelike pen portrait of his grandmother. The narrator tells that he had intimate relations with his grandmother since his childhood. He tells about the bond of relations with his grandmother. So many things. Now we read the chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. नरेटर कहता है कि उसकी दादी जैसे हम सब की दादी हैं, इस एज में बहुत बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. The narrator says that she had been old and her face was also wrinkled for the 20 years. People said that she had once been young and pretty. People also said that she was also young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe. But the narrator says that it was very hard to believe for him that his grandmother was young, pretty, she was having a husband. उसको लगता था कि भी उसकी दादी कभी सुंदर और प्रेटी कैसे हो सकती है जब वो अपनी दादी को लगातार पिछले 20 सालों से इसी अपीयरेंस में देख रहा है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबोव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. वो नरेटर कहते हैं उनके ग्रैंड फादर का पोर्ट्रेट भी इसमें शो किया गया है. देयर इट वॉज हंग over the mantelpiece in their drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. उन्होंने एक पगड़ी पहनी हुई है और उनके कपड़े भी काफ़ी लूज हैं. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी दाढ़ी सफ़ेद है और उनकी चेस्ट के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को कवर किए हुए हैं और उनकी अपीयरेंस से लगता है दैट ही वॉज आल्सो 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. उनके अपीयरेंस को देखकर ऐसा नहीं लगता कि भी उनकी एक वाइफ है और कुछ बच्चे हैं. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, but it seems that he was having a lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, narrator says that as the people said that his grandmother was young and pretty, the thought was also revolting. Revolting means that was unbelievable, offensive. ये विचार भी उसके लिए स्वीकार करने वाला नहीं था. She often told us of the games she used to play as a child. वो अक्सर उन गेम्स के बारे में बताती थी जो वो अपने बचपन में खेला करती थी. That seems quite absurd. Absurd means ridiculous, undignified, disgraceful. ये सभी बातें उनकी दादी के पार्ट पर अनबिलीवेबल थी और रिडिकुलस लगती थी. We treated it like the fables. Fables means old stories. हमें वो सारी कहानियाँ जैसे पुराने टाइम में हमारी दादी सुनाया करती थी वैसे ही लगती थी. Of the prophets she used to tell us. Those people who give the message of God to men. जो हमें भगवान के बारे में मैसेज देते हैं उन्हें प्रोफेट्स कहा जाता है. और जो कहानियाँ वो हमें बताती थी, जो स्टोरीज़ हमें बताती थी, वो सारी हमें फेबल्स और प्रोफेट स्टोरीज़ लगती थी. She had always been short and fat and slightly bent. वो छोटी थी, मोटी थी और हल्की सी बेंट थी. Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Criss-cross means there was a line crossing one another on her face. उनका चेहरा रिंकल से भरा हुआ था और एक जगह से दूसरी जगह पूरी तरीके से रिंकल से भरा हुआ था. No, we were certain she had always been as we had known her. In the line, narrator tells us that they believe that his grandmother
was very old. In the same appearance, they were looking her for 20 years. उन्हें विश्वास था नरेटर को कि उनकी दादी हमेशा से जिस रूप में उन्हें दिखाई देती थी वो उसी रूप में पिछले 20 सालों से है. She was old, so terrible old that she couldn't have grown older. वो इतनी बूढ़ी थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी और हो ही नहीं सकती थी. And had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty. वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी ऐसा उनको लगता था. But she was always beautiful. But she was always beautiful by heart. She hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Hovered means walked. वो घर में स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती. शी वॉज हैविंग वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर वॉज हैविंग. She hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. वो घूमती रहती थी घर में स्पॉटलेस वाइट क्लोथ्स पहनती थी. उन्होंने अपना एक हाथ अपने वेस्ट के अंदर उनकी कमर पर एक स्टूप था, एक ऊपर निकला हुआ था, उसको बैलेंस करने के लिए रखती थी. एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी एंड वन हैंड ऑलवेज बिजी टू टेल द बीट्स ऑफ हर रोजरी. और उसकी माला, उसके पास जो माला थी उसके मोतियों को पिरोने में उनका दूसरा हाथ बिजी रहता. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकड़ फेस. हर सिल्वर क्लोथ, सिल्वर मीन्स वाइट, लॉक्स मीन्स हेयर्स. उनके सिल्वर की तरह जो बाल थे, वाइट हेयर्स, वो बिखरे पड़े रहते थे. अनटिडली उनके पीले और पकड़ फेस पर. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. उनके जो लिप्स थे वो लगातार हिलते रहते. इनऑडिबल दैट कांट बी. दैट कांट बी हर्ड. और जो आवाज़ कभी सुनाई ना दे, इस तरीके की हल्की हल्की आवाज़ में उनके लिप्स हमेशा प्रेयर में हिलते रहते. येस शी वॉज ब्यूटीफुल. मानते हैं वो बहुत सुंदर थी. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सिरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. एक्सपेंस वाइड स्प्रेड, serenity clear and calm, contentment satisfaction. In this line, the narrator compares his grandmother's beauty with the landscape in the mountains, as mountains in winter season appeared white, as the snow covered the mountain, which appears clean with peace and calm. In the similar way, his grandmother was the symbol of peace and contentment. Her life was pure-hearted, her life was satisfactory. Mean to say, नैरेटर की ग्रैंडमदर, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा शांत थी, कंटेंटमेंट से भरी हुई थी, पीसफुल थी. उन्होंने अपनी दादी की लाइफ को माउंटेन्स के अंदर जो लैंडस्केप वाला पार्ट होता है जिस पर बर्फ़ गिरी हुई थी वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद, दैट शोज़ कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, पीस, जो हमेशा शांति का प्रतीक होता है, संतुष्टि का प्रतीक होता है. वैसे ही उनकी दादी जो वाइट क्लोथ्स पहनती थी, सिल्वर लॉक्स थे, वो उनकी पीसफुल और कंटेंटमेंट की लाइफ को शो करते हैं. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड. द नरेटर सेज दैट his grandmother relations was very good. They were very good friends. My parents left me with her when they went to live in the city. जब उनके पेरेंट्स सिटी में रहने के लिए गए, then he used to live with his grandmother and we were constantly together. They were living continuously at the same place in the village.
शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो उसको सुबह उठाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल के लिए रेडी करती. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. Here the word monotonous means unchanging. Sing song means singing in the same tone. The narrator says that her habit was there in the morning that she used to pray whole morning in a monotonous sing song while she bathed him. जब उसको नहलाती थी तो हमेशा लगातार प्रेयर करती रहती. एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और जब ड्रेस्ड करती तब भी वो प्रेयर करती रहती. दैट आई वुड लिसन, उनका ये मानना था ताकि जो नरेटर है वो उसे सुने. एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसको दिल से याद करे. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. नरेटर ये कहता है कि वो उसकी आवाज़ को सुनता था क्योंकि उनको उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी. बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन नरेटर ने कभी भी उसको लर्न करने की चिंता नहीं की. देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट. In the same routine, she used to bring his wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a teeny earthen inkpot, and a red pen. Tie them all in a bundle and hand it to me. जब वो स्कूल के लिए जाता तो उसकी दादी उसके लिए वुडन स्लेट लेके आती जिसको ऑलरेडी येलो चौक के साथ प्लास्टर्ड कर चुकी थी. एक अर्थन इंकपोर्ट था, एक रेड पेन था. वो सभी चीज़ों को एक बंडल में टाई अप कर देती और नरेटर को हैंड ओवर कर देती. आफ्टर अ ब्रेक ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, शी यूज टू गिव हिम स्टेल थिक चपाती इन ब्रेकफास्ट विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ओवर इट. कुछ बटर और कुछ शुगर बासी रोटी के अंदर. स्टेल मीन्स नॉट फ्रेश. उसके ऊपर बटर और शुगर स्प्रेड ओवर कर देती. वी वेंट टू स्कूल, तब दोनों वो स्कूल में साथ में चले जाती. शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स. विलेज डॉग्स के लिए भी वो कई सारी अनफ्रेश चपातीज अपने साथ लेके जाती उनको फीड करने के लिए. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी. उनकी दादी हमेशा उसके साथ स्कूल में जाती थी. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था उसके पास में ही एक टेम्पल था. द प्रीस्ट टोट अस द अल्फ़ाबेट. वहाँ पे जो प्रीस्ट थे वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते. एंड द मॉर्निंग प्रेयर वाइल्स द चिल्ड्रन सेट इन द रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वेरेंडा. वेरेंडर के अंदर दोनों साइड में बच्चे बैठे होते. सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोर्स, और ग्रुप के अंदर अल्फ़ाबेट्स को गाते और प्रेयर को भी गाती. माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. उनकी दादी मंदिर के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स को पढ़ती रहती. When we had both finished, जब दोनों अपने काम को ख़त्म कर लेते, we would walk back together. तब दोनों हम एक साथ दोनों वापस घर की तरफ आ जाते. The mean to say, the narrator says that when he went to the school, her mother always accompanied him. He used to learn alphabets and morning prayer in the school while his grandmother was reading the scriptures while sitting in the temple. And when they both finished the work, they came back for their house. This time the village dogs would meet us at the temple door. जब वो घर में वापस घर की तरफ वापस जा रहे होते, जो विलेज डॉग्स थे वो टेम्पल पे उनका वेट करते. बिकॉज शी यूज टू फीड देम stale chapatis. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. Growling means grumbling, गुर्राते हुए. In this line, the narrator shows that the village dogs always followed them while they were coming back to their house. The dogs of village always followed them because he used to give them stale chapatis. When my parents were settled in the city, जब narrator के parents comfortably settled हो गए थे city में, they sent for us. They called for them. That was a turning point in our friendship. वो उनकी friendship में एक बहुत बड़ा turning point रहा. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. Now his grandmother didn't go with him for the school.
I used to go to an English school in a motor bus. He used to go to school by motor bus. There was no dogs in the street. In the village, dogs were there to feed the dogs ना, but streets में अब dogs नहीं थे. She used to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब in place of the dogs there was sparrows in the city house. अब वो डॉग्स की बजाय अपने घर के कोर्ट यार्ड में, अपने घर के आंगन में बैठकर स्पैरोज को फीड करवाती थी. दैट वॉज द डेली रूटीन when they were settled in the city house.